Recording in progress. Hello everyone, very good afternoon. Welcome to the first session of critical reasoning for your Eklavya mains batch. Ambate, Vikas, Balaji, Monica, Deepak, everyone very good afternoon. Give me a thumbs up just to make sure that audio and video both are perfect so that we can start our session with a positive mindset. Very good afternoon, very good afternoon. Yes, give me a thumbs up that will make sure that everything is perfect. Okay. Everything perfect. Start करें फिर. Okay. Now, when we start with this particular part of critical reasoning, from last 2 years, the weightage of this particular section has been increased tremendously. I still remember for IBPS PO mains, 14 to 15 questions were there of critical reasoning. Now, the point remains the same. की सर हे ना स्टार्टिंगमध्ये जमतंय मग नंतर जमत नाहीये, किंवा अंडरस्टँडिंग आहे पण ऑप्शन्स मार्क करताना मिस्टेक होते. ठीक आहे. सो इन दिस पर्टिक्युलर बॅच विल मेक शुअर दॅट वी अंडरस्टँड which question we should attempt. All the 14 questions attempting is not a big deal, but maintaining the accuracy is important. So if you have like 10 to 12 questions in your mains, you should attempt around 6 to 7, but that which has more than 90% accuracy. So for that particular part, we have started this batch that the level of mains should be increased. Okay. So when we come to critical reasoning, there are different types of questions which can be asked. So the first question which is normally been asked is your inference based question. आता एखादा म्हणणार सर ये inference क्या है. ठीक है. So last benches language में inference means moral of the story. भैया बोला क्या है, संक्षिप्त में लिखे, ऐसा आता है ना. Moral of the story या कंक्लूड कैसा किया आपने, व्हाट इज द बेसिक पैरामीटर. सर रोहित को ऐड करेंगे आप. सो हियर वी हैव टू मेक श्योर दैट व्हेनेवर अ स्टेटमेंट इज गिवन टू अस, we should understand what the author is saying, what is the passage all about. If you know the passage, then and only you should attempt this question, otherwise you should skip this question. सर ह्याच्यामध्ये कोणते टाइपचे क्वेश्चन विचारू शकतात. बिल्कुल सबसे बेसिक क्वेश्चन आएगा सोशल इशू पे. सर अगर सोशल इशू बोला है तो क्या क्या आ सकता है. एक आ जाएगा आपका वुमेन एम्पावरमेंट. ठीक है. सेकंड आ जाएगा चाइल्ड सेफ्टी पे. एक कहीं ना कहीं एनवायरमेंट पे आ जाएगा. ठीक है. अभी ट्रेंडिंग जो है आपका सोशल मीडिया यूसेज पे. सो whenever these type of questions are asked in terms of these different types, always remember that you understand the soul of the sentence, understand what the author is trying to indicate. सर इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है पता है, यही स्टेटमेंट जो भी आपको पैसेज में आएगा वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करके ऑप्शन में दे दी तो 99% स्टूडेंट्स वही अटेम्प्ट करते कि यार ये आंसर है. The reason, they think that this is the answer, but no, it's just an information which is already been given in your passage. That is not the inference. For example, say India won 2024 T20 World Cup and the passage is there, and they say what is the inference of this passage. आणि एखाद्या ऑप्शन मध्ये दिले yes India won T20 World Cup 2024 आणि त्याला पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये किंवा थोडाफार तिखट मिरची लावून त्यांनी ॲज इट इज ऑप्शन दिले. आणि स्टुडंट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन अँड मेक purposely mistake kartat where they mark this as the answer. So whenever an inference based question is given to you, you should understand the difference between information and the inference. Information is already been given in the passage, it is irrelevant to mark the answer. But when it says inference, तर मग inference मध्ये तुम्हाला त्याच्यातनं काय शिकायला भेटलं. जसं आरसीचं एक इन्फरन्स बेस्ड पॅसेज मेन्स मध्ये येतो बघा. ठीक है. It different types of passages, informative passage, your basic technical passage related to banking and everything, XYZ types येऊ शकतात. But there is a passage where it says inference based. One of the questions will be there that what have you understood from this passage. So this is particular called as your inference part.
and which has many types. My personal advice would be you should read newspapers editorial part just to understand or to level up your inference quota of your brain, where you can understand की यार ह्याच्यामधनं तुम्हाला काय शिकायला भेटते. Once you get this particular thing properly ना, these type of questions are doable. But the basic part remains the same. Unless and until you are sure that you have understood the passage, you should not attempt this question. And there should be a difference between information and inference. I hope this point is clear. Now, when it comes to the second type of your critical reasoning part is your assumption. Now, assumption and inference both are different. When we say assumption, okay? When we say assumption, assumption means simple लास्ट बेंचेस लैंग्वेज, पॉसिबल फ्यूचर. क्या हो सकता है पॉसिबल फ्यूचर, या आप पॉसिबिलिटी सोच रहे, ये ऐसा हो सकता है. इंडिया लॉस्ट सेकेंड ओडीआई अगेंस्ट श्रीलंका, ऐसा था. अजम्पशन क्या होगा यार, बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छे से नहीं की. सर ऋतुजा ऐड करा प्लीज. बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छे से नहीं की, या अपना मिडिल ऑर्डर थोड़ा कच्चा रह गया सर. केएल राहुल, शिवम दुबे, ठीक है, कहीं ना कहीं वहां से गाड़ी नीचे गिर गई सर. ठीक है. सो पॉइंट रिमेन्स दैट what can be the assumption. When we say can be, may be, would be, could be, if we can add our own part, we can add our own information की यार असं होऊ शकतं. Same parameters are asked when it comes to assumption also. Same parameter, same as it is. वही empowerment आ जाएगा, वही तेरा social issue, economic issue आ जाएगा, finance के basic parameter दे देंगे. ठीक है. AI के ऊपर आ जाएगा. ठीक है. सोशल एंजाइटी, डिप्रेशन, सेम पैरामीटर वेर यू अंडरस्टैंड द पैसेज, बट व्हाट कैन बी द अजम्पशन, व्हाट कैन बी द सोल्यूशन. ओके, सो दिस इज योर सेकेंड टाइप वेर इट सेज दैट दिस इज पर्टिकुलर योर अजम्पशन वाला पार्ट वेर यू कैन यूज योर ब्रेन. सर इधर नहीं यूज करते क्या? इधर यूज करते बट इसमें एक स्ट्रक्चर दिया है, वो स्ट्रक्चर के दायरे में ही आपको सोचना है. स्केलेटन इज गिवन टू यू, तो उसके अंदर ही आप सोच सकते हो, उसके बाहर नहीं सोच सकते. But in this assumptional part, you can use your brain to the next level. But it should be given in the option. तो धरती पे रह के चांद के बारे में नहीं सोच सकता, अरे हाँ ऐसा हो सकता है. 24 घंटे के भी 25 घंटे होने वाले. ठीक है. So point remains that you can use your brain when it comes to assumption little more as compared to inference. Third type is your course of action. From my perspective, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में छोड़ना ही नहीं चाहिए भैया. जिसने ये क्वेश्चन छोड़ दिया भैया, मेंस अगले साल वापस आएगा. कोर्स ऑफ एक्शन, ऑलवेज रिमेंबर यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इजीली, बिकॉज इफ यू कैन क्लियर प्रीलिम्स दैट मीन्स यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, very very easy. You can go through options, that is elimination method. You can understand the options as well, and you can relate with the statement as well. याला वाइस वर्सा पण सॉल्व करू शकतो. स्टेटमेंट वरनं पण कोर्स ऑफ ऍक्शन वर येऊ शकतो, आणि कोर्स ऑफ ऍक्शन वरनं पण स्टेटमेंट वर येऊ शकतो. क्वेश्चन पासून आन्सर वर पण येऊ शकतो, आन्सर थ्रू पण क्वेश्चन बघू शकतो. आणि याला एक एलिमिनेशन मेथड आहे. ऑप्शन्स कसं करतात ते पुढे सांगेल मी तुम्हाला. तर हे क्वेश्चन तर मस्ट आहे, मस्ट. इट शुड बी डन विदाउट एनी फेल. पॉइंट क्लिअर इथपर्यंत. So course of action is your must have question in your exam. Very easy, doable questions, understandable. Options through पण eliminate करून हे questions बघू शकतो. ठीक है. फोर्थ जो पूरी दुनिया में चल रहा है अभी वो है आर्ग्यू करना, तो उसको बोलेंगे सर आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट में दो आएंगे टाइप सर, एक आएगा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, एक आएगा वीक आर्ग्यूमेंट, और ये है सर सबसे बड़ा पॉट होल, ये है वीक लिंक. Because in examination, whenever an argument is given to you, we use our brain, because human mind cannot be unbiased. हर बार हम unbiased नहीं सकते. Political views है, anything related to the world diaspora, we'll have always have two camps. ठीक है. तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि तू अनबायस्ड नहीं रह सकता. तू कभी ना कभी बायस सोचने वाला, और ह्यूमन नेचर है, बायस्ड होता ही होता है आदमी. सो दिस इज द पार्ट वेयर many students, or I can say majority of the students, make mistake, and I think this is the part we should focus on, that is the argument. So in this batch, in this particular lecture, we'll make sure that we solve more and more argument based question. मग इथे डिबेट झाली पाहिजे, इथे डिबेट झाली पाहिजे. तुम्ही डिबेट केली पाहिजे, सर हाच आन्सर कसं काय बरोबर. मग हा जो डिबेट आहे ना, हा आर्ग्युमेंट मध्ये जातो.
मग एखाद्या स्टेटमेंटवरनं, जसं आपण जर म्हटलं तुम्हाला की यार फ्री इलेक्ट्रिसिटी शुड बी प्रोव्हाइडेड टू फार्मर्स, शुड फ्री इलेक्ट्रिसिटी बी प्रोव्हाइडेड टू फार्मर्स, कोणी काय म्हणणार, येस सर इट शुड बी प्रोव्हाइडेड, अन्नदाता आहे सर. ठीक आहे सर, दीपकला ऍड करा प्लीज, दिसत नाही त्याला, हा आलाय. ठीक आहे, तर जर यांनी म्हटलं फ्री इलेक्ट्रिसिटी शुड बी प्रोव्हाइडेड टू द फार्मर्स, तर कोणी म्हणणार येस इट शुड बी प्रोव्हाइडेड, अन्नदाता आहे भैया, बळीराजा म्हणतो आपण त्यांना. ठीक आहे, तो दे आर नॉट इन अ पर्टिक्युलर स्टेट टू पे द बिल, सो येस इट शुड बी गिवन टू फ्री. मग एखादा सेकंड वाला म्हणणार नो, नहीं दिली पाहिजे, का नहीं दिली पाहिजे, अरे भैया सबको अगर देते बैठेंगे तो फिर नॉर्मली जो जो भार आहे, जो आपला लोड आहे तो टॅक्स पेयर्सवर जाणार आहे. सिंपल आहे ना. सो कहीं ना कहीं ये नो और येस वाला पॅरामीटर जो आर्ग्युमेंट त्यांनी दिला आहे तो आर्ग्युमेंट व्हॅलिड पाहिजे. तुम्ही येस आणि नोचा विचार नाही केला पाहिजे. तुम्ही विचार केला पाहिजे की हा जो आर्ग्युमेंट त्यांनी दिलेला आहे की अरे हा यार दिलं पाहिजे की 60% ऑफ द फार्मर्स आर अंडर पॉवर्टी लाईन, म्हणजे ते अफोर्ड नाही करू शकत, मग तर 100% दिले पाहिजे. म्हणजे हा आर्ग्युमेंट जो आहे हा आर्ग्युमेंट स्ट्रॉंग आहे. फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर आर्ग्युमेंट वी कॅन अंडरस्टँड दॅट दिस इज द पार्ट वेअर दिस आर्ग्युमेंट इज स्ट्रॉंग और वीक. being unbiased जो बहुत डिफिकल्ट है, बट वील मेक श्योर दैट वी कम टू दैट पार्ट लेटर ऑन. ठीक है, सो कोर्स ऑफ एक्शन, आर्ग्यूमेंट. नाउ फिफ्थ पार्ट, is part where it says that here we have to say which is the concluded part. ठीक आहे, कन्क्लुडेड, नॉट कन्क्लुडेड, सिंपल लँग्वेज मध्ये सपोर्ट करायचं आहे, नॉट सपोर्टेड. ठीक आहे, दिस पर्टिक्युलर पार्ट की अपोज करायचं आहे, सपोर्ट करायचं आहे, या पार्टमध्ये हे क्वेश्चन्स तुम्हाला स्टोरी बेस, एखाद्या कंडिशन बेसमध्ये ऍड होऊन जातात. ठीक आहे, अँड द लास्ट टाइप विच विल बी डिस्कसिंग इज द कॉज अँड इफेक्ट. Cause and effect. So every cause, every action has an equal and opposite reaction. So on the basis of Newton's rule that for every action there will be an equal opposite reaction, this is your cause and effect. So in this particular cause and effect part, every condition which is given to you is to make sure that you understand what is cause and what is effect, and what can be the possible cause and the possible effect of this particular outcome. Same parameter, sir, वरती बघा कोणाला ऍड करायचं असेल तर, सेम पर्टिक्युलर पॅरामीटर इज गिवन टू ईच अँड एव्हरी सेक्शन. दॅट एक पर्टिक्युलर रिझन दिला आहे, त्याचा कॉस्ट काय येऊ शकतो, त्याचा इफेक्ट काय असेल हे तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे. हे तुम्ही रीड पण करतात, न्यूजपेपरमध्ये आहे, आर्टिकल्समध्ये आहे, व्हिडिओज, युअर करंट अफेअर पार्ट, एव्हरीवेअर यू कॅन सी द कॉज अँड द इफेक्ट. पण सर ह्याला लास्ट बेंचेस लँग्वेजमध्ये काही दुसरा वर्ड आहे का? बिलकुल. कॉज साठी आपण एखादा वर्ड देऊ शकतो, दॅट इज रिझन. और इफेक्ट के लिए अपन बोल सकते हैं सर रिजल्ट. इंडिया वॉन T20 वर्ल्ड कप 2024, रोहित शर्मा की वजह से, कैप्टनशिप की वजह से. सर रसिक ऐड करा. कोहली अच्छा खेला, बुमराह ने वो विकेट ली, सूर्या ने वो कैच पकड़ी, हार्दिक ने वो लास्ट ओवर डाली. So here we can see the cause and the effects related to the conditions which are given to you. So this is the total scenario of critical reasoning, total scenario. Some of the questions can be added or subtracted, but the base remains the same, that you should understand what is given in the passage. Once you understand what is given in the passage, we'll make sure that we can use different types of methods to find the correct answer. Rather than finding the correct answers, we can eliminate the wrong ones. इथपर्यंत क्लिअर असेल तर एकदा थम्सअप देऊन टाका की हा पूर्ण सिनॅरिओ आहे क्रिटिकल रिझनिंगचा, आउट ऑफ विच विल बी डिस्कसिंग ईच अँड एव्हरी सेक्शन फॉर युअर पर्टिक्युलर टॉपिक. डन है, चलो करें फिर स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के लिए. नाउ I'll give you 1 minute to read the question and to understand. चलो 1 मिनट से ज्यादा 90 सेकेंड्स दे दिया आपको. सिर्फ रीड करके एक सिंगल लाइन में इसमें से क्या समझा है आपको लिखना है. That's it. Everyone who's watching it live or recorded, in 90 seconds you just have to read it, and in a single line you have to write what have you understood from this passage. Okay, चलो.
हॅलो 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 हा, व्हॉइस 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 परत रिपीट करू. मला हे म्हणायचं आहे की ह्या पॅसेजमधनं तुम्हाला जर एक लाईनमध्ये विचारलं नेमकं काय म्हणायचं आहे तो क्लिअर आहे का. इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, वो तुम्हारा कॉल है. ठीक है, जल्दी से बोलो, रिप्लाई करो प्लीज. रीड इट फॉर यू. ठीक है, तब तक तुम लिख के पोस्ट कर सकते हो. अ स्टडी कंडक्टेड बाय द हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ कंसर्निंग द रिलेशनशिप ऑफ प्राइस इंक्रीज in drinking amongst college students shows that students faced with a $1 increase above the $2.7 average price for a drink will be 33% less to make the transition from being an abstainer means the one who doesn't drink, to moderate drinker, or from being a moderate drinker to a heavy drinker. Simple, last benches language. तेजस ने क्या बोला, ड्यू टू प्राइस इंक्रीजिंग लेस पीपल आर लाइकली टू एलिवेट ड्रिंकिंग. ओके, सिंपल आहे सर, एकदम सिंपल. लास्ट बेंचेस लँग्वेज में क्या बोला है सर, वस्तूंची किंमत वाढली तर विक्री कमी होते. ये भैया ये कमेंट में कुछ मजा आया, एकदम इकोनॉमिक्स वाली बात की, इकोनॉमिक वाला बात की इसने. मतलब सर अगर $1 से प्राइस बढ़ा, ठीक है, एनी प्राइस, एनी कमोडिटी, यहाँ पे अल्कोहल यूज किया है, and the example is related to college going students because the college going students cannot afford. ठीक है ना, समझ में है ना, घर वालों से कब तक झूठ बोल के पैसा लोगे भैया. ठीक है, तो हर बार तो आपको पैसे मिलने से रहे. So as the price increases by just $1, where the average price was 2.17, as it increases by $1, the possibility of a person from being an क्या बोलो उसको, abstainer to a moderate drinker decreases by 33%. Not just that, from a moderate to a heavy drinker वो भी possibility कम होती है 33%. दिस इज द पैसेज. हा पॉइंट क्लियर असेल तर एकदा थम्स अप देऊन टाका. और ज्यांना नाही आलंय, इसलिए आपका रीजनिंग थोड़ा वीक है, इसलिए इंग्लिश में जीएसटी बोला है मैम ने. वंस यू रीड द पैसेज यू मस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन इट in a single or 2 lines just to make sure that you have understood the passage. ठीक है, now what can be the inference. Now when we say inference that means the moral. अभी यहाँ पे ना एक सिंपल मेथड बताता हूँ, देख एकदम सिंपल मेथड पे फोकस कर. जानवी को ऐड करो सर, सिंपल मेथड पे फोकस करो कि करेक्ट आंसर ढूंढना ही नहीं आपने को, रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट करो, उल्टा दिमाग लगाओ. रिवर्स इंजीनियरिंग हमारे इंजीनियरिंग में सबसे बेसिक पार्ट था, नहीं समझ में आता ना, उल्टा दिमाग लगा. ये आंसर आया कैसे होगा, सोच, क्वेश्चन से दिमाग लगाना शुरू कर. ठीक है, आंसर ऑटोमेटिक मिलेगा. सेम पैरामीटर. मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या बोला, उसके बाद वो क्लियर हो गया. जान्हवीला म्यूट केलं का आणि ऑप्शन्स एलिमिनेट करा. ठीक है, जान्हवी थोड़ा आरामात. ठीक है, चलो. The first line says that the first option says increasing the cost of alcohol is the only way of reducing consumption. भैया दारू के भाव बढ़ाने से ही कंजम्पशन कम होगा, ऐसा तो नहीं होगा सर. ओनली नहीं बोल सकते, इसके लिए एक वर्ड आना चाहिए, वन ऑफ द वे. वन ऑफ द वे. Second, students consume alcohol because it is not very expensive. No, that is not the reason. सबको पता है क्या रीजन है, heartbreak. A large percentage of students are moderate to heavy drinker. आता a large percentage of students are moderate or heavy drinkers नहीं सर, ये भी नहीं है. हाँ, can be वर्ड ऐड हो सकता, तो assumption हो सकता था. Increasing the cost of alcohol reduces its harmful effects on health. इज इट रिली वर्थ. जर अल्कोहोलची कॉस्ट वाढली तर हार्मफुल इफेक्ट जे आहेत हेल्थवरनं ते कमी होतात. इज इट सो, इज इट सो. फिर तो बढ़ा दो भैया, सिगरेट के भी बढ़ा दो, तंबाकू के भी बढ़ा दो, 10 का 10,000 कर दो. खाने के बाद कुछ नहीं होगा. नहीं सर, ये भी नहीं होगा सर. लास्ट ऑप्शन, इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ अल्कोहल reduces its consumption. That's it. That is the inference based part. पीटा रहे तक कश्यप, पीने वालों को तो बहाने थे. कल तो गटारिया अमावस्या थी, कोई गया था नहीं गया था. हा? इधर तक क्लियर आहे का, एक बार रिप्लाय करो. पहिला क्वेश्चन क्लियर आहे का सगळ्यांना, कारण की सेकंड क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व करणार आहे, मी सॉल्व करणार नाहीये. बघ आन्सर वर आपण चेक करू. जल्दी से रिप्लाय करो. यस.
क्लियर आहे? चिकन पार्टी होती म्हणे सर. अरे वाह. चल करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट. I'll give you 2 minutes on the clock to solve this. Okay? चलो. हेलो. चलो. यस. प्रियंका, रोहित, मोनिका, रसिक, बालाजी, जानवी, दीपक, आंसर पोस्ट करो. क्या लग रहा है? आंसर पोस्ट करो जल्दी से. I'll read it for you. Experts define social entrepreneurship as such that pursues opportunities to serve mission to give solutions to social problem. For example, say एग्जाम्पल दे सकते हैं, समझो क्लाइमेट चेंज. ठीक है. वी कैन गिव एग्जाम्पल सच एज वुमेन एम्पावरमेंट. ठीक है. बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स टिपिकली मेजर परफॉर्मेंस ऑन प्रॉफिट एंड रिटर्न. वो सोचते भैया प्रॉफिट कितना आया, रिटर्न कितना मिला, बस, और बारे में नहीं सोचते. बट सोशल एंटरप्रेन्योर्स बिलीव टू गिव सोल्यूशन फॉर सोशल प्रॉब्लम्स. So there's a difference between social and business entrepreneurs. So what can be concluded? Concluded means inference. सर क्या समझने आया है आपको? ठीक है. Now let us go with the options. It is possible to address social problems while making business profit. Can I say there is no particular bridge between social and business entrepreneurs? Is there a bridge? ऐसा उनका कुछ कनेक्शन दिया है क्या साथ में? ऐसा है क्या? हाँ, बालाजी वाघ, प्रियंका, विवेक लोनारे, भाई और बहनों, ऐसा कुछ दिया है क्या आपको कि ये कहीं ना कहीं इनका कुछ ऐसे रिलेशन है दोनों का? तो फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है. तो अगर पॉसिबल हुआ तो ये इन्फरेंस माना जाएगा या अजम्पशन माना जाएगा? क्या लगता है सोनल को, रसिक को, मोनिका को? क्या लग रहा है आपको? लिख के बताइए जरा. Exactly. It won't be an inference. It won't be an inference. It will be an assumption. But still won't be a complete assumption वाला part. इससे भी डिबेट होगा. But ठीक. Let's go for option B. Social entrepreneurship is different from business entrepreneurship. Yes, they focus on social to solve social problems. Solve social problems. Whereas business entrepreneurship is for your profit and return. So yes, they are different. As the example or the explanation goes, बिझनेस ऑन्टरप्रेन्योरशिप डज नॉट केअर अबाउट सोशल प्रॉब्लेम्स. मला सांगा दोघांमध्ये असं काही वाद विवाद किंवा असं काही निगेटिव्ह पॉईंट आहे का
कि यार ये अच्छा तो मैं बुरा, ये अच्छा तो मैं बुरा, बरोबर है, या ये होगा तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, तो फिर ये ऑप्शन कैसे आएगा सर? बिझनेस ऑन्टरप्रिनरशिप इज मोर इम्पॉर्टंट. आता या दोघांमध्ये कंपॅरिझन आहे का दोघांचा फक्त डेटा दिलाय तुम्हाला? हाँ, क्या बोल रहे हो? सिर्फ डेटा दिया है या दोनों का कंपेयर किया है? कौन सा भारी कौन सा कम भारी, ऐसा क्या बोला है? लिख के बताओ जरा. Only information given to you. So this can be the inference. So yes, correct option will be Bombay. None of these पण होता, but second one भेटलाय ना आपल्याला. चलो यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लेम, किसी को कुछ डाउट? मला वाटतं की मॅक्स टू मॅक्स आन्सर्स एलिमिनेट करायला सुरुवात करा, जेणेकरून तुम्हाला एक बेस जो आहे तो सापडेल. चलो ट्राय करो. चलो, यस एवरीवन. ओके, ऑप्शन बी. चलो चेक करते. Following the massive earthquake in Gujarat, building rules in Gujarat required all apartment buildings constructed after 2001 to have earthquake resistant designs. 2001 के बाद में every building in Gujarat which has been constructed after 2001 should have a earthquake resistant design. With this sure. So what can be concluded from this passage? What is the inference which is given? Very easy, we can eliminate the options. Very good. C and E is eliminated. Let's check. Gujarat earthquake also affected earthquake resistant buildings. तो फिर अगर ऐसा होता तो वो बोलते थोड़ी भैया वापस बनो. सेंस ही नहीं बनता ना सर. All apartments building built in Gujarat after 2002 have to have earthquake resistant designs. 2002 बोला है, ठीक है. Let us keep this option just to make sure there is suspense. Some apartment buildings constructed before and had earthquake resistant designs. So sir, ये तो information है, कुछ मतलब नहीं. Now if you are saying D, that both A and B follows, which has a psychological mindset कि A और D follow रहा है सर, मोस्टली वैसे ही फॉलो होता, तो नो. First thing when we say option A, it is already eliminated. It is already eliminated. Doesn't make any sense. If it would have affected earthquake resistant buildings, तो गुजरात गवर्नमेंट बोलती नहीं earthquake resistant building बनाओ.
So option D is eliminated. Here is the mindset when students don't read the question properly. You haven't read the question properly. 2001 के बाद गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि भैया अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन वाली बिल्डिंग बनाओ. हो ना, तर हे एलिमिनेट नाही केले मी आतापर्यंत. ऑप्शन बी है अभी बना है वो, इधर चेक करेंगे. बिल्डिंग रूल्स रिक्वायर द बिल्डिंग टू हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ फ्लोर्स. इसके बारे में कुछ बोला है क्या ऊपर? हाँ, इसके बारे में कुछ बोला गया है क्या ऊपर? एक बार रिप्लाई करिए प्लीज. No, so this is also eliminated. So my correct answer for this question will be Bombay. Is it clear to you? Give me a thumbs up if it is clear to you. चलो, eliminate A, D, and E, and many of you are saying D as well, and Bombay. Okay, let us see. Many sociologists have argued that there is a functional relationship between education and economic system. They point to the fact that mass formal education began in industrial society and is an established part of all industrial societies. Simple last benches language मध्ये एखादी टेक्नॉलॉजी आली, त्या टेक्नॉलॉजी रिलेटेड कोर्सेस सुरू होतील, जसं एआयचं सुरू झाल्यावर. सेम when it had an industrial revolutions, technical parameters were added. When the banking system was there and is there and will be there, there will be courses related to banking system. Point clear hai? So here we have to make sure that we understand that education and particular thing, that is the economic system, are correlated. अगर वैसा रहेगा ही नहीं सोशल सिस्टम या आपका इकोनॉमिक सिस्टम, तो वैसा एजुकेशन कैसे रहेगा? दे गो hand in hand together always. Now, which of the following inferences can be drawn? Rather than finding the correct options, let's eliminate the wrong ones. ठीक है, डी से शुरू करते. इंडस्ट्रियल सोसाइटी चेंज द पैटर्न ऑफ एजुकेशन. यस, इट डिड. तो इसको स्टार करके रख देते.
फॉर्मल एजुकेशन कैन बी ट्रेस टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं हो रही है सर, ओवरऑल एजुकेशन की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी कैन बी एलिमिनेटेड। ठीक है, industrial society is responsible for expansion of education of the mass level or on the mass level. Yes sir, this is more correct. D can be the answer, but in a broader perspective जास्त बरोबर जर म्हटलं तर ऑप्शन बी बरोबर, याच्यापेक्षा दोन्ही बरोबर पण हा जास्त बरोबर, जसं म्हणतो ना फॉर्मल एजुकेशन हैज सफर्ड अ सेटबैक ड्यू टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। नहीं सर, उसको तो सपोर्ट कर रहे हैं सर। सो करेक्ट आंसर ओवर हियर विल बी बॉम्बे। Any doubt, any problem to this point where we have comparison factor, always remember that the inference will always be on the majority वाला side. इथपर्यंत क्लिअर असायचं, एकदा कन्फर्मेशन देऊन टाका। चलो, ऑल द शादी.com वालों, नॉट जस्ट शादी.com, every.com वेयर मैट्रिमोनियल साइड वालों, लो तुम्हारे लिए क्वेश्चन आ चुका है। थोड़ा शांति से करो, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लग सकता है। ठीक है, चलो। ओके चलो, आंसर पोस्ट करो जल्दी से। यस, ऑप्शन आ रहा है सी। अभी कहानी में ट्विस्ट, ट्विस्ट देखो। ठीक है, क्या बोला है? ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स आर टर्निंग आउट टू बी हैप्पी हंटिंग ग्राउंड्स फॉर फ्रॉडस्टर्स। A man pretending to be an NRI doctor from the UK posed as a prospective bridegroom। भैया रिश्ता लेके आए हैं।
and duped a techie woman of 50 lakhs on the pretext of sending her foreign currency in return. In a similar case, another man pretending to be an NRI businessman duped a divorced lady of 15 lakhs in the guise of sending her a marriage gift. तो पैसेज तो सबको क्लियर है. Now, what can be concluded from the passage? It is very easy to understand that yes, these websites are, you have to make sure you do a background check. But obviously, women who utilize matrimonial website want NRI bridegroom. सही है क्या ये बात? क्या बोलते हो? जो भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे है लड़कियां, उनको भैया एनआरआई वाले ही लोग चाहिए, ऐसा जरूरी है? हमारे बैच में तो मोस्टली थे भैया ऐसे. ठीक. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैरिज एंड वेडिंग ना. आजकल लोगों को मैरिज नहीं चाहिए, आजकल लोगों को वेडिंग चाहिए. बहुत डीप थॉट है, समझा तो समझा किसी को. ठीक है. वुमन हु मीट prospective bridegrooms online are gullible. Not every woman is, so some might be there, and same goes for men as well. Some of the profiles of NRIs posted on matrimonial websites are fraud बोल सकते डायरेक्ट. Can I say this is the information? This is what I was talking about. Can I say this is the information which is already been given here? इसलिए 90% बच्चों ने आंसर सी किया. Can I say this? This is an information is already given there. Can I say this? Yes or no? Give me a straight, blunt reply. Yes, Balaji, Sonal, Monica, Janvi, everyone. जल्दी से. As it is information था यार वो. तुझे क्या लगा दिमाग में? वो पढ़ा है वही आंसर होगा. That is why many students make mistake when it comes to inference based. Yeah, as it is information था यार. It was easy for fraudsters to pose as NRIs and dupe women. Yeah, it is easy, but it is not that easy also. Na? Some of the examples will be there. Last, online matrimonial websites are not reliable. Yes. So correct answer will be option E. They are not reliable. समझे? अगली बार याद रखो, घर वालों को भी बोलो ये चीज. सबका बायोडाटा होगा क्या? रुके हो अभी तक जब तक जॉब नहीं निकलती? रिप्लाई करो जल्दी से. इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर है क्या? जल्दी से रिप्लाई करो यार. चलो आराम से सॉल्व करो. आई म्हणाली म्हणे नोकरी लागली तरच लगीन म्हणे. ठीक आहे, होईल होईल, या वर्षी होईल. 24 आपलंच आहे.
चलो आंसर बताओ। अरे तो एबीसीडी डायरेक्ट उस पे आ गए। हाँ, नाउ व्हेन वी से what can we conclude it, we mean what will be the inference for this passage. ठीक है, it is not that simple. At the same time you can eliminate the options very easily once you understand the statement. A medical magazine only publishes articles that are written by qualified doctors or psychologists. Only publishes असं म्हटलंय. And his article was accepted for publication in that month's issue. So can I say Piyush is either a doctor or a psychologist? Can I say this? Yes or no? Moreover, if one wishes to submit an article to this magazine for publication, he or she must make his submission before 5th of the month of the issue he wishes his article to be published in. Piyush submitted an article to the magazine before October 5th. His article was accepted for publication in that month's issue. Clear hai? Now, let us go with the option. Piyush article was only accepted because he submitted it before 5th of October. No. No. Either he was a doctor or a psychologist. That was important. Option, let us go with the option D. Magazine editors asked Piyush to write an article. No, it is not given, so it doesn't make any sense where it is going. Piyush knows a lot about subject featured in the magazine. But does it say that either he's a doctor or a psychologist? No. The magazine frequently publishes Piyush article. Can I say this is an assumption? Piyush is a qualified doctor or a psychologist. So answer A is more correct. यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ डाउट? बहुत सिंपल था ये. Why not E? Because it is incomplete. Only accepted. Only accepted because he submitted it before 5th of October. It is already been given in the statement. इसलिए बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्टेड आहे. बिल्कुल डिबेट करू आपण, पण ह्या क्वेश्चन नंतर. ठीक आहे, चलो ट्राय करो. इनकम्प्लीट हुआ ना बालाजी वो, इसलिए.
ओके चलो ठीक है, चलो चेक करें फिर। A few years back, when we lived in New York, my 3-year-old son Max had an unyielding passion for Thomas the Tank Engine trains. पोगो पे आता था शायद, है ना? Piece by piece, he accumulated a rather impressive collection. But here is the thing that fascinated me as a parent. Every time Max received a new train that he had obsessed about, which he just had to have, he promptly took out the catalog to identify the next train that he could no longer live without. मतलब एक मिलती थी तो भैया दूसरे की तरफ, दूसरा मिला तो भैया तीसरा, तीसरा मिला चौथा, ऐसा था वो बच्चा। किसका होगा भैया वो, अपन तो नहीं सहन करते, ठीक है। So once he acquired Thomas, fearless Freddy had to be had to be next. Then Clarabelle, followed by Duncan, Rusty, Diesel, 10, and so on. What can be the most logical conclusion for the above statement which is given to you? The first, the tank engine series had been fascination for most young children in New York. Now that's the twist wala part. For the most of the young children in New York, can I say this is not an inference, this is an assumption, because he's particularly talking about his son. He's not talking about out of many childs had that particular thing for the Thomas the train, but they were particularly talking about specifically about his child, that is Max. तो सर ऑप्शन ए नहीं आएगा, बिकॉज अगर बहुत सारे बच्चों में उसका बच्चा होता तो फिर समझ में आती बात, ठीक है। नेक्स्ट, एज अ पेरेंट यू विश टू फुलफिल ऑल योर चाइल्ड्स डिजायर्स इवन इफ इट इज बियॉन्ड योर बजट। मतलब सांगा बजट के बारे में बात हो रही है क्या, बजट के बारे में बात हो रही है क्या, जरा लिख के बताइए आप। बजट के बारे में तो बात नहीं हो रही है, तो सर बी तो नहीं आएगा। सी चेक करते, मैक्स लाइक्ड टू स्क्वांडर हिज फादर्स मनी। स्क्वांडर मतलब लूटना, ठीक है, विदाउट एनी इंटरेस्ट इन प्लेइंग विद द टॉयज। ऐसा किसका बच्चा रहेगा बताओ। तो भैया काली बाप को लूटने के लिए पैदा हुआ है, ठीक है, तो सी भी नहीं आएगा सर। Parents believe that transmitting a sense of high expectation to children is one way parents infuse them with confidence. No, this is not a thing. ऐसा थोड़ी है, doesn't make any sense, irrelevant. Last option, there is no such thing as perfectly and permanently satisfied person. संतुष्ट आदमी होता ही नहीं है, आदमी ही असंतुष्टि का कारण होता है। कभी भी आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता, जो चीज उसके पास नहीं है आदमी उसी के बारे में पहले सोचता, बट जो चीज है उसकी वैल्यू नहीं करता। बोलो यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ इशू? क्लियर है क्या ए वालों? यार मेरे टाइम पे ना मुझको फैसिनेशन ना थॉमस दी ट्रेन का बोला ट्रम्प कार्ड्स का था, ट्रम्प कार्ड्स। कभी किसी के पास था क्या ट्रम्प कार्ड्स थे क्या? किसके साथ मिलता था एक ट्रम्प कार्ड्स पहले? डब्ल्यू डब्ल्यू के और क्रिकेट, सबसे पहले क्रिकेट के आए थे, नंबर ऑफ मैचेस, स्ट्राइक रेट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कुछ रहा होगा तो मेरे पास इंग्लैंड का एक प्लेयर था एलेक्स स्टुअर्ट बोल के, एलेक्स स्टुअर्ट, उसका आया था। वो कौन से बिग बबूल बूमर किसके साथ मिला था पता नहीं। फिर बाद में मार्बल आए, मार्बल के साथ डब्ल्यू के प्लेयर के स्टिकर्स आने लग गए, 2 रुपए के, 5 रुपए के। माई ब्रदर हैड इट, ओके, मेरे भाई ने देखा है। पावर रेंजर्स नहीं, पावर रेंजर्स तक बहुत बड़े हो गए थे हम तो, फिर नाही आम्ही पण क्रिकेट खेळायचो, पण ते स्टिकर्स ही फार आवडती, फार म्हणजे फार भैया, फार हाइट। उसमें द रॉक का आ गया, तुमको द रॉक वाला मिला तो मैं बोलता हूँ तेरे को कॉलोनी टू कॉलोनी जाते थे साइकिल पे,
ये कॉलोनी के दुकानदार के पास, भैया तुम्हारे पास है क्या, ये चॉकलेट है क्या, तो बोलता था है, बट वो चॉकलेट ज्यादा हमको इम्पॉर्टंट आहे की उसमें वो रॉक वाला होना चाहिए. मग तेव्हा नवीन ब्रॉक लेझर नवीन आला होता 2000च्या समर समर स्लॅम में आया, समर स्लॅम में आया था, हाँ समर स्लॅम में आया था, रॉक को हराया था उसने. तो तो थोड़ा बहुत ऐसा था. चलो वर्क लाईफ बॅलन्सवर ना पॅसेज पण येतं बरं का लिहायला प्रॉपरली. वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, याद रखो. इसको ऐसे के हिसाब से भी लो. अरे हाँ लास्ट वाला बाकी है ना. अरे लास्ट वाल्यामध्ये श्योर आहे ते का नाही येणार. ही हॅड सबमिटेड बिफोर 5th, आई एग्री. तो वो वाला एज इट इज इंफॉर्मेशन दिया है रे, एज इट इज बालाजी. उसको दिमाग लगा के मतलब नहीं, बट फिर भी ऐसा सेम एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ मैं कल नेक्स्ट लेक्चर के लिए. ठीक है. चलो वर्क लाइफ बैलेंस वालो.
चलो यस, confusion skip. Okay, better choice, good decision, good decision. No, it should not be either A or D, it should be your perfect answer. Okay, chalo. Many executives and employees strive for work life balance. They find ways to acquire enough time in the week to both carve out meaningful home experiences and also complete high priority work assignments, which seem to leave both domains depleted. कहीं पे भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में. To try to control this situation, many of us try to impose better boundaries on ourselves and our time. We set up strict rules about when we will and won't check work email, where we do and don't bring our mobile phones, and often we can and we can't bring work home with us. तो सिंपल लैंग्वेज में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कि समझो 5 बजे के बाद कॉल मत उठाओ, 5:30 से 8 का अपना टाइम आपको पता है. दिस इज नॉट वर्क लाइफ बैलेंस बट दिस इज सेटिंग द बाउंड्रीज, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है. बट न्यू रिसर्च सजेस्ट दैट मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट distinctions between work roles and home roles might actually be what is causing feelings of stress to set in. मला सांगा, सगळ्यांना जेव्हा पॅसेज तुम्ही रीड केलं तेव्हा क्लिअर आहे का? Once you read this passage very carefully and once you understand what the passage is all about, do you understand what it is trying to say? Once you get this, that means you have a very good reading skill. Very good, excellent. Now let us try to find the correct conclusion for this. Okay, now home related thought at work can make one experience a cognitive transition from the work role to the home role. Accepted, but this is not the conclusion we were hoping, right? This is not the conclusion that we were hoping. So, no, this is not. Allowing employees' mind to wander and take occasional phone calls from home is better to set up policies that establish strict and inflexible boundaries. Accepted that, but they are saying this is the course of action. What we can do for this? इसके लिए सोल्यूशन ढूंढ रहा. कोर्स ऑफ एक्शन भी अलग वर्ड नहीं, इसको बोलेंगे सोल्यूशन. ये प्रॉब्लम के लिए वो वन ऑफ द वेज है सोल्यूशन का. इसको हम कंक्लूजन नहीं बोल सकते. हो बिल्कुल स्किप केलं पाहिजे, बिल्कुल. किस्मत को टेस्ट नहीं करने का मेंस, ये तो अगले साल आना पड़ता है. दोनों में कंफ्यूजन छोड़ दे. हाँ, बट दोनों में लग रहा है कि सर ये ज्यादा करेक्ट हो सकता है, तो फिर बिंदास मार्क कर, मेरा नाम ले और मार्क कर. ठीक है, दिस इज अ सोल्यूशन, नॉट दिस इज द सोल्यूशन, नॉट द कंक्लूजन. ओके, मेजॉरिटी ऑफ एक्झिक्युटिव्स अँड एम्प्लॉईज आर लेस डिसिप्लिन्ड ॲट वर्क. मला सांगा, लेस डिसिप्लिन ॲट वर्क कंपॅरिझन केलं आहे का? एकदा येस किंवा नो रिप्लाय करा. बात ही नहीं हो रही है सर. जब बात हो ही नहीं रही तो क्यों दिमाग लगाने का? तो दिस इज एलिमिनेटेड. Yes, everyone. Next, keeping work and life separate is more troublesome. Yes, it is more troublesome than it is worth. Accepted. D is correct. Option E eliminate हो रहा है नहीं हो रहा है check कर लेंगे. Today, activity has become the anesthesia for leaders, okay, who wonder if they are really accomplishing anything worthwhile or important. That doesn't make any sense. So your correct answer will be Delhi. क्लियर है क्या? एक बार रिप्लाई करो प्लीज. यहां तक क्लियर है क्या? सर, हाउ यू मैनेज वर्क लाइफ बैलेंस? कौन सा मूवी का डायलॉग है? तूने आवारा पागल दीवाना देखी है क्या? अक्षय कुमार और अक्षय कुमार है उसमें.
छोटा छतरी अपना सुनील शेट्टी, जॉनी लीवर और आफ्ताब शिवदसानी वगैरह वगैरह सब लोग। तो उसको नाम भूलने का प्रॉब्लम रहता, देख नाम भूलने का। तो उसकी बीवियां तंग करते रहती उनको, फिर वो जाते इसके पास, राहुल देव के पास, गुरु गुलाब खत्री। तो तूने जब पूछा ना ऐसे, तो वो डायलॉग याद आया मेरे को। गुलाब भाई, कभी मेरी कहानी सुनाऊंगा ना तो आंखों में से आंसू आएंगे। तो अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन जब तुम फुर्सत से मिलोगे ना, तब मैं तुमको मेरी कहानी सुनाऊंगा तो आंखों में से आंसू आएंगे बोले तुम्हारे। याद है क्या तेरे को? तो वो वैसा वाला सीन। सो व्हेन समवन आस्क्स मी कि सर वर्क लाइफ जिम ट्रेकिंग क्रिकेट फैमिली टाइम, अभी तो एक पार्टनर भी है लाइफ में, उसका टाइम मैनेजमेंट। तो अभी तो वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन जब फुर्सत से वक्त मिलेगा ना तब मैं बताऊंगा कटारा भाई। अबे कौन सा कटारा भाई, मैं तेरे को बताऊंगा मेरी कहानी, वो दुख दर्द पीड़ा। तो ऐसा कुछ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है? ऐसा कुछ नहीं भैया, अपने को बहुत अच्छे लोग मिले, ऐसा बोलना पड़ेगा दिमाग में, कि इसके बाद अपना अभी नए नोट्स का काम शुरू है ना, उसके बाद जिम। तो क्या पता है यार, हो रहा है मैनेज, काम करने को मजा आता है बस। ऐसा लग रहा है चीटिंग नहीं कर रहे हैं अपन किसी के साथ, वो ईमानदारी से कर रहे हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन।
चलो, yes, yes, yes. Let us read what it says. Now the parameter is, it is 1 week since Andaman and Nicobar's worst disaster in living memory, tsunami resulting from an extremely powerful earthquake in the Sumatra Islands of Indonesia swept away mountainsides, villages and towns. Thousands of people, thousands of people, animal, agriculture, fields, irrigation, canals, domestic water sources, dams, roads, bridges, and buildings. Anything that stood in the way. A week later, media attention remains riveted on the efforts to rescue tens of thousands of tourists and tourists visiting tourist place like Port Blair. तो मीडिया का फोकस सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट या टूरिस्ट प्लेस में प्लेसेस सच एज पोर्ट ब्लेयर पे है. But the deluge spread far beyond Port Blair to cover the entire Union territory. The catchments of many smaller rivers also witnessed flash floods, but the media has yet to report on the destruction there. Media ने उसके बारे में अभी तक बात नहीं की. So there is a grey shade, negative part बोल सकते हैं मीडिया के बारे में कि उन्होंने उसके बारे में बात ही नहीं की. Eyewitness accounts being gathered by official agencies and voluntary organizations have reported devastations from more than 200 villages so far, and more affected villages are being reported every day. So eyewitnesses gathered by official agencies and voluntary organizations, that they are working tirelessly to help the people. Okay, now what can be the possible conclusion, inference, or author would agree with this? Port Blair was most affected by Andaman Nicobar tsunami. No sir, इसके बारे में बात ही नहीं हो रही है. Entire catchment of rivers flowing in Andaman Nicobar was affected. Yes, but it is already been given, so this is the information, not the conclusion वाला part. D, media cannot be trusted. ये बहुत बहुत वेग हो गया, ये बहुत आगे का बोल दिया आपने, इसके बारे में हम नहीं डिस्कस कर सकते. मीडिया कैनॉट बी ट्रस्टेड, ये बहुत ब्लंट स्टेटमेंट हुआ. वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आर बेटर देन मीडिया इन रीचिंग आउट अफेक्टेड पीपल, इसके बारे में भी बात नहीं हो रही. दोनों के बारे में बात हो रही, पर दोनों का कंपैरिजन नहीं है. सो हियर माय आंसर विल बी ऑप्शन सी. सो इन दीज क्वेश्चंस in which we have studied what can be the inference, so the first part remains the same, जे मी स्टार्टिंग मध्ये शिकवलं होतं तुम्हाला की पहिले पॅसेज पढो, पॅसेज क्लियर होना चाहिए. Once the passage is clear, understand what it says, and rather than finding the correct options, eliminate the wrong ones. तो कितने करेक्ट आए एक बार लिख के बताइए जरा हमको, कितने करेक्ट आए आपके. Say 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Out of these 9, how many questions were correct? लिख के बताइए जरा हमको. ऑल करेक्ट, फक्त एक स्किप केला. व्हेरी गुड दीपक. बाकीच्यांचं काय म्हणणं, किती करेक्ट आले, किती रॉंग आले, काय क्लिअर आहे, काय क्लिअर नाही आहे. इथपर्यंत हा लेक्चर जो घेतला हा पर्टिक्युलरली क्रिटिकल रिझनिंगचा फर्स्ट लेक्चर आहे. मागच्या वेळेस आपण जो बॅच घेतली होती, बॅच म्हणता येईल किंवा लेक्चर्स म्हणता येईल स्टार्टिंगला मेन्सच्या, तर मी तुमच्याकडे रिव्हिजन करून घेतलं होतं बघा क्रिटिकल रीजनिंग का. और अपना डिसाइडेड था कि हर फ्राइडे को अपना क्रिटिकल रीजनिंग का एक लेक्चर रहेगा. ठीक है, तो वो करके अभी जब तक हम यहाँ पे पहुंचे तो थोड़ा बहुत अंडरस्टँडिंग लग रहा है क्या? ठीक है सर, 2 स्किप झाले, 1 रॉंग झाला. ओके सर, 2 रॉंग ऑप्शन में कन्फ्युजन था. ओके व्हेरी गुड. 7 करेक्ट, 1 रॉंग, 1 स्किप. ओके, बाकीचे जे पण लाईव्ह आहेत रिप्लाय करा प्लीज एकदा. 6 करेक्ट, 1 रॉंग, 2 स्किप. ओके ओके, आलेत का? वर्क एंड इट्स इफेक्ट, वर्क एंड इट्स सीक्रेट, स्वामी विवेकानंद के ना. तो कैसे करता है, यहाँ पे ही है क्या तू? संभाजीनगर औरंगाबादला असेल तर सांग. सर हा टाइप चांगला जमतोय आता.
ठीक आहे, ये बघ उद्या भेटायला 11:15 वाजता. पेमेंट पण करतो मी बुक्सच्या आणि मग यांना देऊन पण टाकू. 2 रॉंग, 3 स्किप, 4 एलिमिनेशन मेथड. ओके, ठीक आहे. सो व्हॉट वी विल डू इज we'll take one type every day and we clear it by the end of the week, and from the next week we'll be solving it through tests. ठीक आहे, प्रत्येक टाईप आपण रोज घेणार आहे आणि एकदा टॉपिक संपल्यानंतर तुम्हाला याच्या पर्टिक्युलर टेस्ट राहतील. ह्या पर्टिक्युलर टेस्ट जे राहतील ते तुमच्यासाठी अवेलेबल राहतील जेव्हा टॉपिक कम्प्लिटली एंड होईल. आणि टेस्टमध्ये फक्त आन्सर की नसून तुम्हाला टेस्टमध्ये सोल्युशन राहील, एक्सप्लेनेशन राहील की नेमका हा बरोबर काय आहे, हा का रॉंग आहे, हे का करेक्ट आहे, हा ऑप्शन का एलिमिनेट केला. ठीक आहे. सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर फॉर युअर क्रिटिकल रिजनिंग पार्ट वेअर इट सेज इन्फरन्स बेस्ड क्वेश्चन. कंप्लीट झालेला नाहीये. विल बी टेकिंग फ्यू मोर क्वेश्चन्स अबाउट इट. विल बी इंक्रीजिंग द लेवल ग्रॅज्युअली, नॉट एक्सपोनेंशियल. ठीक है, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम. तेरा बस नंबर भेज दे मुझको, मैं फोन पे करता हूँ तेरे को. 11:15 वाजता माझे 3 लेक्चर्स असतात. 11:15 पर्यंत मी फ्री होतो. सकाळी 7:30 जे सुरू होतो आणि मग डाऊट क्लिअरिंग असते ना, तर 11:15 11:30 मी फ्री होतो. 3 लेक्चर संपतात, मग डाऊट क्लिअरिंग असते. 1:15 पर्यंत, 1:15 पर्यंत डाऊट क्लिअरिंग असते आणि मग 2 वाजता आपला लेक्चर असतो. तो वो 11:15 से 11:30 के बीच में 15 मिनट है मेरे पास. तू तब आ जा, अपन तब मिल लेंगे. ठीक है. कितने बोला है तूने? 20 ना? हाँ बस ला ले, एक तेरी ले ले, 19 दे दे मेरे को. इनको दे देंगे अपन सबको बुला के. ये तो रोज पढ़ता, उसको रोज कम से कम 2-3 बार तो एक कंडीशन पढ़ता है वो बुक की. चलो फिर, विल स्टॉप हियर टुडे. ओके, एंड सी यू टुमारो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो टिल देन बी पॉजिटिव, मेक श्योर. हाँ, लास्ट पॉइंट इज रिमेनिंग. योर LR अटेम्प्ट फॉर RRB PO प्री. एक बार LR के जरा अटेम्प्ट बता दो. मतलब हम लोग प्रीलिम्स तो देने वाले हैं, मेंस तो देने वाले, तो LR का एक बार स्कोर चाहिए था मुझको. फक्त LR पाहिजे मला सध्या. हां, टोटल 48 आहे सर. ठीक आहे. LR 33, 37, 34, 39. व्हेरी गुड तेजस. 28, 27, 29. ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड. ठीक है, अभी ओवरऑल बताओ, ओवरऑल कितने अटेम्प्ट हुए आपके और कौन से स्टेट से भरा है. अगर वो लिख दिया तो और बेटर हो जाएगा. मतलब आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी कि यार यहाँ तक तो पहुंच रहे हैं हम लोग. ओके, MP से 48 है, 54 महाराष्ट्र, 52 महाराष्ट्र, महाराष्ट्र 51, महाराष्ट्र 54, महाराष्ट्र 54. ओके ओके, 52 महाराष्ट्र, 62 महाराष्ट्र. अरे वाह. सेकेंड शिफ्ट महाराष्ट्र 54, छत्तीसगढ़ सेकेंड शिफ्ट 49, 61 is Maharashtra. Very good. So we can expect almost, you will be giving almost all म्हणता येईल. समचा पार्ट झाला तो, पण सगळेजण मेन्स देणार आहे. तुम्हाला डेट माहिती आहे का मेन्सची? RRB PO मेन्सची डेट माहिती आहे का तुम्हाला? मतलब डेट पता है तो बोलो, नहीं तो मैं बोलता हूँ आपको डेट. मतलब तब तक अपना सिलेबस कहाँ तक होगा और फिर नेक्स्ट मेंस बैच का भी आपको बोलता हूँ. हाँ बरोबर, 27 सितंबर आहे. तो फिर यहां से क्या करो, अभी नए वाले मॉक टेस्ट आगे देखो. ठीक आहे, बघू ना आपण, ट्राय करू. ॲक्युरेसी असेल 100% निघेल. आपण तर पॉझिटिव्ह राहू. लोग अपने बारे में नेगेटिव सोचे, बट अपन तो पॉजिटिव रह सकते. खुद के लिए तो पॉजिटिव सोच ही सकते. तो अगर किसी क्रिकेटर के डाउनफॉल को लेके तो पॉजिटिव है, तो भैया उसका अच्छा होगा, तो खुद के बारे में तो सोच. सो RRB PO मेंस सेकेंड मॉक टेस्ट यू हैव टू गिव. ओके, तो कब देते हो बताओ? कल, परसों, कब कब टाइम है तुम्हारे पास? टाइम कब है आपके पास, बताओ जल्दी से. RRB PO मेंस सेकेंड मॉक टेस्ट कब टाइम है आपके पास, बोलो.
तुझ्याकडनं तेच एक्सपेक्टेड आहे मला. तू नेहमी पॉझिटिव्हच राहा, चांगलंच होईल बघ. ठीक है, तो वेडनेसडे को डन करते हो? अरे तो 10 को क्लर्क है तो तेरे को क्लर्क के लिए अलग से क्या पढ़ना पड़ता रे? आरआरबी क्लर्क के लिए पढ़ेगा तू अलग से. आज बोल दिया बाहर मत बोल. मेंस बैच लगा और क्लर्क के प्री के लिए पढ़ रहा है तू. एक दो दिन ठीक है मॉक देने के लिए. वेनेसडे को दो मॉक चलेगा. वेनेसडे को मॉक दे दो. आरआरबी पीओ सेकंड मॉक. नाही त्या दिवशी नाही घेणार, त्या दिवशी नाही घेणार, 10-11 नाही घेणार. वेनेसडे को दे दो सुबह. ठीक है, विल टेक द एनालिसिस ऑफ दैट जस्ट टू मेक श्योर दैट वी आर ऑन सेम पेज. वेनेसडे आरआरबी पीओ सेकंड मॉक सगळ्यांनी. स्पेशली त्या मुलांनी द्या ज्यांना असं वाटतं की तुमची प्री नाही निघणार. त्याच माइंडसेटने द्या तुम्ही. ठीक है, चलो. सो yes, we will stop here today. Thank you so much. Have a very good day and we will meet tomorrow. Okay, so take care. पकड़ गया ना वहाँ वहाँ भाई आपको किसने सिखाया? राम जी ने सिखाया. यही तीर धनुष एवं मोदी जी चलाए थे फिर टूट गया था. वो तो ऐसे ही गिर गया, ऐसे ही गिर गया था, ऐसे गिरा ये तो. ये राम जी सिखाया, राम जी तुमको भी नहीं सिखाए बल्कि राम जी को आगे लेके धर्म बनाते हैं. देखिए राम जी को ऐसे सिखाया.
देखी होगी, 4 ठग थे। एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था, तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसे ली जाए। तो हो सकता है कि उनको थोड़ा भूख से नहीं हो, तो उन्होंने कहा चलो छीन तो नहीं साफ कर पाएंगे, तो एक काम करते हैं, चारों अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं और हम लोग बोले कि भाई ये कुत्ते का बच्चा कहाँ लेके जा रहा है। तो वो किसान बेचारा अपनी बकरी के बच्चे को कंधे में रख करके लेके जा रहा है। तो पहले से गुजरता तो बोलता, अरे काका ये सब क्या ले जा रहा है, एक बच्चे को अपने कंधे में लेके क्या जा रहा है। किसान बोलता है धूर्त कहेंगे, ये कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। वो हंसते हुए चुप हो जाता है। अपने चौराहे में जाकर गुस्सा कर, अरे काका ये कुत्ते का बच्चा आप कहाँ लेकर जा रहे हैं। बोलता है, उसको भी डांटता, काले पागल हो गए क्या, अरे कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। तीसरा ठग मिल जाता है, वो हर कोई यही बात उसको बोलता है। चौथे ठग ने कहा तो किसान को विश्वास हो गया, उसको लगा कि खुला वाला किसान, अन्नदाता किसान, मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, लगता है कि मेरी दृष्टि दोषी ही मुझे हो गया है, लगता है कुत्ते का बच्चा है, उसने देख लिया उसको। चारों ठगों का काम पूरा हो गया और चुनाव में शिवपाल जी भाग गए यहाँ से। लेकिन 27 में सपा चढ़ के लिए तैयारी कर, 27 में एक लाख वोट के लिए हम लोग ही मांगेंगे हिसाब। 1 लाख का वोट खा गया और मैं सबसे कहूंगा एक बात, चाहिए जनता जनार्दन के सामने पूछिए उनको कि भाई 1 लाख का हिसाब मांगिए, उनको से पैसा गया। पैसा तो पार्टनर करतो, बरोबर म्हणाला प्रसाद म्हणाला होता, सगळ्या मला आता यक्षला वाटतं तुझ्याकडे यावं आणि शिकावं तुझ्याकडेच की म्हणाला होता की नाही. सर प्रसाद लोकांचं मनावर घेतलंय, त्यांच्या मागे लागतात. मी तर प्रसाद जज आहेत बरोबर आहे हो, म्हणजे मानधन वाचन ऍक्च्युली त्यांचं मानधन एवढं जास्त नाहीये. बजेट कसं वाढलं त्यांचं महिन्यामध्ये शिकण्याचं प्रसाद Shawty, it's your birthday.